ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਭੜਕੀ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਗਾ ਮੂੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 48 ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $1000 ਅਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਗੂ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ अपना समाज सेवी ब्रिशमण गुजर। देखिए, अयोध्या के संत शब्द सब जान रहे हैं, घोटाला हुआ है और निश्चित घोटाला हुआ है। और जो उस ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय जी महाराज हैं, जब इनके जिम्मे पूरा मंदिर का काम दे दिया गया है और सारे विभाग का काम ये देख रहे हैं, तो घोटाला हुआ तो क्या इनको जानकारी नहीं थी क्या? अगर इनको जानकारी नहीं थी, जो लोगों ने जानकारी बताया, तब क्या हुआ? जैसे महिपाल यहाँ पे लेखाधिकारी था, जब उसने कहा कि यहाँ घोटाला हो रहा है, रुपया बाहर जा रहा है, 10 की जगह 15 गड्डियां जा रही हैं, जब उसने बताया तो उसको उस पद से हटा क्यों दिया गया भाई? उसकी जांच करते कि सही कर रहा गलत कर रहा है, उसके पद से क्यों हटा दिया गया? चलो ये भी कोई बात नहीं है। 8 महीने का वो कैमरा क्यों डिलीट कर दिया गया भाई? चलो ये भी कोई बात नहीं है। जब स्वर्णकारों ने 200 चांदी का ईंट लाके इनको दिया और इनसे कहा कि आप इसकी रसीद दे दीजिए, इन्होंने रसीद नहीं दिया। क्यों रसीद नहीं दिया भाई? आपने रसीद क्यों नहीं दिया? चलो इसकी बात छोड़ दीजिए। विनोद मिश्रा जो है इस मंदिर जो है रकड़िया मंदिर के श्री महंत हैं, उन्होंने कहा कि एक सोने का एक बहुत बड़ा हार और एक क्षण पादुका चांदी का ला करके मैंने टीनू यादव को दिया।
मन में रखा गया और कहा गया कि इसकी रसीद दीजिए। उन्हें कहा ठीक है, बाद में आपको रसीद दे दी जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के बाद उनका भाई रसीद दे दीजिए। कहा नहीं, रसीद आप क्या करेंगे, जो ठाकुर जी को पहनाया जाएगा फोटो आपको दे देंगे। तो फोटो नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको जो है बंगलौर भेज करके गलवा दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जब कोई सामान किसी अंदर जाता है उसका एक रिपोर्ट बनती है, कितना इतना सीमेंट, इतना बालू, इतना रुपया, इतना पैसा इस फैक्ट्री के अंदर गया काम करने के लिए। और जो कोई बाहर निकलता है तो उसकी गेट पास बनता है। निकासी का भी होता है, बाहर का भी होता है, जिसको गेट पास कहा जाता है। और उस गेट पास की प्रत्येक दिन शाम के वक्त उसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड DPR। उसको DPR कहते हैं, जिसका नाम होता है डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसी तरीके से 7 दिन की एक समरी बनाई जाती है, जिसको VPR कहा जाता है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। और इसके बाद जो है 1 महीने की एक समरी बनाई जाती है, जिसको MPR कहा जाता है। अब इन लोगों को पता है पढ़े लिखे हैं या अंगूठा टेक हैं या मूर्खाधिराज हैं या केवल RSS के राम भक्त हैं, ये लोग उनको ये भी नहीं पता है कि DPR किसे कहते हैं, VPR किसे कहते हैं, MPR किसे कहते हैं। कोई बनाया गया इनका DPR MPR? तो क्या ऐसे ही सब चल रहा है क्या मंदिर में? जो बिल्कुल। अभी तो RSS वाला एक व्यक्ति बोला है, आप पसंद है, उन्होंने कहा कोई राम मंदिर थोड़ा है, वो तो RSS का कार्यालय है। आप क्या बताएंगे? RSS का एक इनका नागपुर से रहने वाला, उसने अभी डिपेंड कहा है कि ये RSS का मंदिर है। हम एक चीज जानना चाहते हैं जी मंदिर में जो SIT की जी देखो भैया, मध्यम वर्ग किसान परिवार से आती हूँ, यही लिए कोई बहुत तीन झामड़ा नहीं बतलाऊंगी। जब आजम खान को बकरी चोरी, किताब चोरी, न जाने कौन कौन से केस में उठाकर जेल में ठूस दिया जा सकता है, पत्रकारों को सवाल करने पर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर राम मंदिर के चोट्टों के खिलाफ FIR लिखने में पुलिस के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या रामराज है भाई साहब? पॉकेट मार जेल जा रहे हैं और मंदिर में डकैती डालने वाले माल उड़ा रहे हैं। वाह! सिंधी समाज के एक भैया सामने आए हैं, उन्होंने बोला है कि 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंटें उनके समाज ने राम मंदिर को दान में दी थी। ईंटें कहां गई उसका कोई अता पता नहीं है। रसीद मांगते मांगते थक गए, लेकिन मंदिर ट्रस्ट वाले रसीद दे ही नहीं रहे हैं। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। भाई चांदी कहां चंपत हो गई, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के पैसे से ही चुनाव लड़ा जा रहा हो? जैसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना रखा था, 13,000 करोड़ लेकर भाग गया, वैसे ही खेल राम मंदिर के साथ तो नहीं चल रहा है।
इलेक्टोरल बॉन्ड बैन होने के बाद अब राम मंदिर के चढ़ावे को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। भगवान के मंदिर में दिया गया दान गिफ्ट होता है। गिफ्ट चोरी करने के मामले में पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है और हमारी सरकार भगवान राम को लूटने वालों को जेल में डालने की बात तो छोड़ दीजिए, एफआईआर तक नहीं लिखवा पा रही है। करीब 200 करोड़ का सोना चांदी चंपत करने वालों का इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है। बताइए, हिंदुओं को खतरे से बचाने आए थे, बेशर्म लोग भगवान को लूट रहे हैं। इन सब के बीच देश की जनता हो चुकी है मानसिक गुलाम। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि नॉन बायोलॉजिकल वाले को भगवान माने या जिसने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया उनको भगवान माने। नॉन बायोलॉजिकल वाले से सवाल करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को समझ नहीं आ रहा। अब ये देखिए, दिल्ली की एक महिला अनीता भारद्वाज ने चंपत राय को काग भुशुंडी नाम का चांदी का कौवा दान में दिया था। अब ये कौवा ही गायब हो गया है। अनीता जी कहती हैं कि दान की रसीद व्हाट्सएप पर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक रसीद मिली ही नहीं। दोस्तों, काग भुशुंडी कौवे के रूप में एक अमर ऋषि थे। इन्होंने रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह कई बार अपनी आंखों से देखी है। काग भुशुंडी ने हजारों युगों का अंत और उत्थान अपनी आंखों से देखा है, यानी ये अमर टाइम ट्रैवलर कहे जाते हैं। सब कुछ इनकी आंखों के सामने घटा है। इन्होंने हर दिशा में जाकर श्री राम के नाम का खूब विस्तार किया, खूब प्रमोशन किया। और अब देखिए, त्रेता, द्वापर, सतयुग सब युगों को कई कई बार देखने के बाद ये कौवे महाराज कल था, मैंने बता दिया था कि ये जो 8 लोग हैं ये तो मछलियां हैं, मगरमच्छ बचाए गए हैं। जितने मगरमच्छ हैं सब बचाए जा रहे हैं। निश्चित तौर से जिनके द्वारा ये कुकृत्य कराया गया है, जिनको पूरी मतलब जानकारी थी, इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। जहाँ जहाँ हमारे 15 बच्चे जल के मर गए हों, डेड बॉडी हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री से ये जान हो रहा है, छोटी छोटी मछलियां फंसाई जा रही हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ बचाए जा रहे हैं। ये एक्शन होता है क्या? इसको एक्शन कहा जाता है क्या? हम लोगों ने खून बहाया है, एक पैसा मांगा है, ईंट करके जवाब दिया है, इन लोगों ने जवाब नहीं दे पाए हैं। अभी जो है विश्व हिंदू परिषद ट्रस्ट के लोगों ने आय और खर्च का विवरण नहीं दिया है। ये पीएमओ हाउस के लेटर का दुरुपयोग किया गया है, अवहेलना की गई है। मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि सोसाइटी से मैं संतुष्ट नहीं हूं। जब तक ये बड़ी मगरमच्छ ने फंसाई जाए, इनको न जेल भेजा जाए, मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूं। अगर यही 30-40 साल पहले की बात होती तो अब तक ऐसे लोगों को जूतों की माला पहना करके इस अयोध्या से सरजू के उस पार खदेड़ दिया जाता। इन लोगों ने जो गंदा काम किया है, हमारा चढ़ावा चोरी किया है। चढ़ावा है, वो चंदा नहीं है, चढ़ावा है। उस चढ़ावे की जिस तरह से चोरी किया और अपना घर भरा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हम भारत में विभिन्न शहरों में जाते रहते हैं। जब यहाँ भाजपा हारी और देश प्रसाद सांसद हुए तो हम लोगों से सवाल किया जाता था। कुछ लोग कहते थे हम लोग डरते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं। आप अयोध्या की हकीकत देखिए। अयोध्या के लोगों को हटाया जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। इनके हाथ में फूल की डलिया, ई रिक्शा थमा दिया जा रहा है कि आप इसी से ऐश करिए। इनको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। इनकी रीत नीति में कोई फर्क ही नहीं है। ये 2027 जब बुरी तरीके से हारेंगे तब इनकी समझ में आएगा। ये जो कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, इनको जाने जाना है। इन्होंने हमारे देश का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अपमान किया है। बताइए, लोग कह रहे हैं 200 चांदी की ईंट, सोना चांदी जवाहरात सब इन लोगों ने लूट करके अपना खजाना भरा। टिन्नू यादव हॉस्टल इतना बड़ा बड़ा, अनिल मिश्रा इतना बड़ा मालिक बन गया, बच्चे विदेश में सेटल्ड हो गए। चंपत राय 12-13 डिग्री कॉलेज, ये सारे लोग, ये पैसा कहाँ से आया? पैसे का ना तो कोई और चोर है भैया, इनका भगवान ही बेड़ा पार करेंगे।